Hey everyone, hi, hi, how are you all? हेलो, क्या हाल चाल? बढ़िया सब? सब मस्त? Hi. So people, I cannot come live today because I had to go somewhere. I have to go somewhere. ठीक है? Next class में live मिलते हैं. ठीक है? Okay. Those who are new, I'll just introduce myself. Hi everyone, I am Sakshi Pahuja, your master teacher. I have a teaching experience of 6 years in one of the top JE institutes. ठीक है? And I am an MSc in chemistry. Okay? ठीक है, चलो लेट्स गेट केमिस्ट्रिकल जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, है ना? विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट टू स्टार्ट द टॉपिक. ठीक है? ओके, दोज हु हैवंट जॉइंड द टेलीग्राम ग्रुप, जिसने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, पीपल क्लिक ऑन द लिंक एंड ज्वाइन इट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ज्वाइन दिस ग्रुप क्योंकि ऑल द इंटरेक्शंस दे कीप हैपनिंग देयर, है ना? वी पीपल कीप सेंडिंग मैसेजेस देयर, योर टीचर्स, ऑल द टीचर्स ऑफ एनसीईआरटी चैनल. ठीक है? Okay, and those who haven't subscribed to the channel, जिसने subscribe नहीं किया है, please hit the subscribe button and the bell icon. ठीक है? And subscribe to this amazing channel so that you do not miss any notification and any session. ठीक है? That's all you need to do. Okay, so people, we are bringing something for you that's called the V quiz. Okay, all you have to do is to download the Vedantu app. Vedantu app download कर लो. Okay, you have to download this app and you have to play the week quiz from 5th October to 18th October. ठीक है? And you might get a chance to actually be on the hot seat of the KBC and to actually play KBC with Amitabh ji. ठीक है? So that's once in a lifetime opportunity. ठीक है? तो जल्दी से इसको वीक क्विज को खेलना शुरू कर दो. ओके, लेट्स रीकैप. जल्दी से रीकैप करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में किया था. लास्ट क्लास में वी डिड अबाउट द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, राइट? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को कंप्लीट किया था हमने. ठीक है? सो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? वन आर दोज विच शो पॉजिटिव डेविएशन. पॉजिटिव डेविएशन कब होगी? व्हेन ए एंड बी इंटरैक्शंस आर लेसर देन द ए बी interactions are more than the more than the these interactions are more than the AB interaction. ठीक है? So these interactions are lesser, which means that the force of attraction between A and B, it is lesser than the force of attraction which A was having with the molecules of A and which B was having with the molecules of B only. ठीक है? So force of attraction is decreasing. So if force of attraction is decreasing, then tendency of A or B, A and B to vaporize will increase and hence vapor pressure will increase. ठीक है? So vapor pressure of both A and B, it is greater than that would have been by the Raoult's law. It's greater than that would have calculated from the or expected from the Raoult's law. Simple. Then we did the solutions which show negative deviation. अब negative deviation क्या होगी? In which AA and BB interactions are lesser, but AB interactions are more. ठीक है? So the force of attraction between A and B molecules, it is much greater than that was present in pure A or in pure B. ठीक है? So the tendency of A or B, either A or B to vaporize, it will decrease. Now it will decrease and vapor pressure will be lesser. Vapor pressure will be lesser than that expected from the Raoult's law. ठीक है? Vapor pressure अभी कम हो जाएगा. So you will be having the graphs that were lying below the ideal lines, है ना? And in positive deviation, you will be having the graph that were lying above the ideal lines. Remember, we did it in the last class. ठीक है? Then we did the relation of vapor pressure with boiling point. Vapor pressure with boiling point. What was boiling point, people, if you remember? Boiling point क्या होता है? It is the temperature, simply the temperature at which vapor pressure of a substance has increased to external pressure, has increased to 1 atm or the external pressure. ठीक है? So as you heat a substance, its vapor pressure will keep increasing, of course. When it becomes equal to the external pressure, then that substance is said to be boiling. ठीक है? And that temperature will be the boiling point of the substance. Simple. ठीक है? तो boiling point निकाल सकते हो आप. Now, what is the relation between boiling point and vapor pressure? Suppose I told you this thing last time also. Suppose I have two liquids, है ना? L1 और L2 लिया था हमने. ठीक है? And one liquid has vapor pressure 0.8 atm already, other has 0.5 atm.
ठीक है. Now which of these will require more heating in order to have its pressure equal to 1 atm? Which of these? Of course L2, because its vapor pressure is lesser. ठीक है. Whereas L1 is already having high vapor pressure, so it will require lesser heating to make its vapor pressure equal to 1 atm. ठीक है. These are both the vapor pressures at room temperature. Both are at same temperature, 25 degrees Celsius, 25 degrees Celsius, right? ठीक है. So you have to heat L1 lesser because its vapor pressure is already high and its vapor pressure can easily be made to equal to 1 atm. Whereas L2 will have to be heated more in order to make its vapor pressure equal to 1 atm. ठीक है. So I can say that greater the vapor pressure, lesser amount of heat it will require in order to make its vapor pressure equal to 1 atm. ठीक है. And lesser will be the boiling point, people. So that's an important relationship. That is, boiling point is inversely proportional to vapor pressure. Boiling point will be inversely proportional to vapor pressure. Greater the vapor pressure, lesser will be the boiling point. ठीक है. Boiling point कम हो जाएगा, यानी कि वो टेम्परेचर कम हो जाएगा जिसपे उस सब्सटेंस का वेपर प्रेशर 1 atm होगा. ठीक है. That's it. Very simple. Okay. Moving on. So now people, we have the solution that show large positive deviation. वो solution जो बहुत ज़्यादा positive deviation show करते हैं, like I have shown here. ठीक है. You can take any example. Let's take the example of ethanol and water. मान लो मैंने ethanol और water लिया. ठीक है. And they form a solution that show positive deviation. Why? Because the force of attraction between ethanol and water, it is lesser than the force of attraction that was between water and water. ठीक है. यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने. यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, but this hydrogen bond, people, it is weaker than this hydrogen bond which is stronger. ठीक है. So that is why the solution will show positive deviation, large positive deviation. Now people see, when a solution will show positive deviation, its graph will be lying above the ideal line. ठीक है. So this is the ideal line and this is the actual graph. ठीक है. That is shown here. Now look at this point. This is the point where vapor pressure of the solution is maximum, right? Vapor pressure of the solution is maximum and the corresponding amount or corresponding mole fractions of A and B are these. Corresponding mole fractions of solute and solvent can be calculated from the graph. ठीक है. Now people, at this point, if vapor pressure is maximum for this concentration, for this amount, for this composition of the solution, vapor pressure will be maximum. ठीक है. मान लेते हैं ये जो composition है ना, ये जो point है, जो point मैंने लिया है, मान लेते हैं ये जो composition है इथेनॉल और वाटर के लिए, ये इतनी होती है. वैसे जो composition है वो है 95%, तो इसमें है इथेनॉल और बाकी का 5% क्या है, वाटर. दिस इज परसेंटेज बाय मास, पीपल, दिस विल बी बाय मास. ठीक है. तो इस कॉम्पोजिशन पे जो वेपर प्रेशर है मैक्सिमम है, यानी कि इस पॉइंट पे इस कॉम्पोजिशन के लिए सॉल्यूशन मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है इस कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए. ठीक है. ये रहा ये सॉल्यूशन, यहाँ पर हम सॉल्यूशन भी बना देते हैं. ये सॉल्यूशन है जिसमें 95% क्या है, इथेनॉल. ठीक है. और 5% क्या है यहाँ पर, वाटर. ठीक है. लेट मी टेक अ डार्कर कलर. ठीक है. 95% इथेनॉल, 5% है वाटर. ठीक है. अब इस कॉम्पोजिशन के लिए, दिस पॉइंट के लिए जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो मैक्सिमम है. ठीक है. अगर मैं 95% इथेनॉल लूं और मैं 5% पानी डाल दूं उसमें बाय मास, तो मेरे पास एक ऐसा सॉल्यूशन आ जाएगा जो मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा देन एनी अदर कॉम्पोजिशन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर. ठीक है. कोई और आप कॉन्सेंट्रेशन लोगे इथेनॉल और वाटर की, वो इतनी पॉजिटिव डेविएशन शो नहीं करेगा जितना ये वाला सॉल्यूशन करेगा. ठीक है. सो वेपर प्रेशर विल बी मैक्सिमम. नाउ पीपल, if it has got maximum vapor pressure, this solution has got maximum vapor pressure than any other solution of ethanol and water. ठीक है. अगर वेपर प्रेशर मैक्सिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मिनिमम. इस कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा मिनिमम. ठीक है. फर्स्ट प्रॉपर्टी. Another property is that this solution at which vapor pressure is maximum and boiling point is minimum, this particular solution is called azeotrope.
ठीक है, इस सॉल्यूशन को बोलते हैं एजियोट्रॉप। ठीक है, सो एजियोट्रॉप इज नथिंग, दे आर द सॉल्यूशन एट विच डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इट इज मैक्सिमम, डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी इट इज मैक्सिमम। ठीक है, तो ये हो गया आपका एजियोट्रॉप। नाउ व्हाट एजियोट्रॉप इज दिस? फॉर दिस एजियोट्रॉप बॉइलिंग पॉइंट इज मिनिमम। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोल देंगे? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसको क्या बोलेंगे हम? दिस विल बी कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या बोलेंगे इसको? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। सो यू कैन कीप इट इन माइंड दैट द सॉल्यूशंस that will be showing large positive deviation, they will form minimum boiling azeotrope, they will be forming minimum boiling azeotrope one thing। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी एजियोट्रॉप की। एजियोट्रॉप आखिर होते क्या हैं, क्यों एजियोट्रॉप बोल रहे हैं इनको? ठीक है, ये भी बताती हूँ मैं, लेकिन उससे पहले यही चीज हम करेंगे। सॉल्यूशंस दैट शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन भी तो हो सकता है। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लो, सपोज आई हैव टेकन HNO3 एंड वाटर, HNO3 और वाटर का सॉल्यूशन है। ठीक है, जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, लार्ज नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, लास्ट टाइम बताया था ना ये। ठीक है, तो इसके लिए भी पीपल क्या होगा, इसके लिए भी सेम ग्राफ यू कैन ड्रॉ। The difference is only that I am only drawing the graph of the total pressure, total pressure वाला ग्राफ बना देती हूँ मैं। The difference is that, चलो सारा ही बना देते हैं, कितना टाइम लगेगा। The difference is only that the actual lines, the actual graphs of the vapor pressure, they will now be lying below the ideal lines, right? क्योंकि नेगेटिव डेविएशन है ना, तो एक्चुअल प्रेशर क्या होगा? आइडियल वाले प्रेशर से कम हो जाएगा, रॉल्स लॉ वाले प्रेशर से कम हो जाएगा। ठीक है, सो ये जो ग्राफ है ये आपका समथिंग समथिंग ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, मतलब दे विल नॉट कोलाइड लाइक दे आर डूइंग हियर। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, सो पीपल, अब इसमें क्या होगा, इन दिस ग्राफ देयर विल बी अ मिनिमम पॉइंट, देयर विल बी अ पॉइंट जिसके लिए टोटल प्रेशर क्या होगा? मिनिमम, है ना। फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट दैट आई एम हाईलाइटिंग हियर, इस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर है वो क्या है? मिनिमम। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग मोल फ्रैक्शंस ले लो, कॉरेस्पॉन्डिंग मोल फ्रैक्शन भी ले सकते हैं हम। सो फॉर दिस मोल फ्रैक्शन द वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर इज मिनिमम, द टोटल वेपर प्रेशर इज नथिंग बट मिनिमम। ठीक है, इस कॉन्सेंट्रेशन को कुछ ले लेती हूँ मैं। सपोज मैंने इस टाइम पे इस कॉन्सेंट्रेशन के लिए सॉल्यूशन बनाया, और ये जो कॉन्सेंट्रेशन है HNO3 के लिए, मान लो HNO3 के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको क्या बोल देंगे हम? कुछ भी ले लो, मान लो 80%, 80% नहीं 70% बच्चे, दिस इज आई एम एज्यूमिंग, आई डोंट रिमेम्बर दिस कॉन्सेंट्रेशन, सो आई एम एज्यूमिंग इट। मान लेते हैं 70% HNO3 और क्या कहते हैं 30% उसमें था वाटर। ठीक है, तो this solution for with this composition, solution of HNO3 with this composition will show maximum deviation from the ideal behavior, maximum deviation from the ideal behavior, or its vapor pressure will be minimum than any of the aqueous solution of HNO3, क्योंकि इस पॉइंट पे मिनिमा आ रहा है, और किसी कॉन्सेंट्रेशन के लिए तो आ नहीं रहा ना, सिर्फ इसी कॉन्सेंट्रेशन के लिए आ रहा है। ठीक है, तो सिर्फ इसी कॉन्सेंट्रेशन के लिए वेपर प्रेशर मिनिमम होगा। अब वेपर प्रेशर मिनिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट विल बी मैक्सिमम बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो आप कोई भी सॉल्यूशन ले लो HNO3 का, सिर्फ इसी सॉल्यूशन के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मैक्सिमम आएगा देन एनी अदर सॉल्यूशन ऑफ HNO3 एंड वाटर। ठीक है, ओके, अब बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो गया एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर, ऑफ कोर्स बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको भी एजियोट्रॉप बोलोगे आप। ठीक है, बट दिस विल बी कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। व्हाई? बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है, दिस विल बी कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, नाउ पीपल, एजियोट्रॉप्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एजियोट्रॉप्स की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आई विल टेल यू दैट। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। क्या होता है बेसिकली, क्या होता है? नाउ लेट अस रिव्यू अ लिटिल। हमने 9th-10th वाली क्लासेस में पढ़ा होगा आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, रिमेंबर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, पूरा हम फिनोमेना डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आई नो यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दैट। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती क्या है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? द बेसिक प्रिंसिपल इज दैट vapor phase gets more and more richer in the more volatile component, that is the principle of the fractional distillation। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं, सपोज यू हैड, यहाँ पर आपने दो कंपोनेंट्स लिए ए एंड बी, मान लो ए और बी लिया आपने। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ कि ए जो है वो ज्यादा वॉलेटाइल है।
ठीक है, ए ज्यादा वॉलेटाइल है, या फिर ऐसा बोलो ए का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा ना, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। ठीक है, मोर वोलेटाइल मतलब मोर वेपर प्रेशर बट बॉइलिंग पॉइंट विल बी लेसर, सो बॉइलिंग पॉइंट कम है इसका, बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो व्हेन यू स्टार्ट हीटिंग विच ऑफ दीज विल वेपराइज मोर, विच ऑफ दीज विल वेपराइज मोर, दोनों इक्वली वेपराइज थोड़ी होंगे। ठीक है, तो जो वेपर्स होंगे उसमें ए का अमाउंट मैक्सिमम होगा, ए का अमाउंट ज्यादा होगा, बी का बहुत कम होगा। ठीक है, सो ऑल दीज मॉलिक्यूल्स इन वेपर फेज दे आर ऑफ ए एंड लेस विल बी बी, बहुत कम होगा बी, ए होगा बहुत ज्यादा। ठीक है, सो दिस इज द बेसिस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ना, दिस इज हाउ वी फाइनली सेपरेट ए फ्रॉम बी, है ना, दिस इज हाउ वी फाइनली सेपरेट ए फ्रॉम बी। अगर ए वेपर्स में ज्यादा है, इसका मतलब लिक्विड में कौन ज्यादा होगा, लिक्विड में तो ए कम हो गया, इसका मतलब लिक्विड में कौन ज्यादा है, बी। ठीक है, दिस इज हाउ यू एक्चुअली सेपरेट द मिक्सचर। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, क्या होता है कि वेपर का जो कॉम्पोजिशन है, वेपर फेज का जो कॉम्पोजिशन है वो लिक्विड फेज से अलग होता है हमेशा। वेपर फेज में वॉलेटाइल कंपोनेंट ज्यादा होगा, ठीक है, और नॉन वॉलेटाइल कम होगा, दैट इज हाउ यू सेपरेट अ मिक्सचर। ठीक है, सॉरी, but people, what if the composition remains same, what if the composition remains same, तब क्या करोगे आप लोग, सपोज मान लेते हैं, सपोज आई हैव टेकन द सेम सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी, और मेरे को पता है ए ज्यादा वॉलेटाइल है। ठीक है, मान लेते हैं कि ए ज्यादा वॉलेटाइल है। ठीक है, और जो मैंने कॉम्पोजिशन ली ना वो ये ली है, ए की जो परसेंटेज है मान लो वो 60% है सॉल्यूशन में, और बी की परसेंटेज जो है वो है 40% सॉल्यूशन में। ठीक है, अब मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि जब ये वेपराइज होंगे तो ए का अमाउंट वेपर में ज्यादा होगा, बी का कम होगा। ठीक है, लेकिन टू माई सरप्राइज एक्चुअल में हुआ क्या है, जब ये वेपराइज हुए तो वेपर में सेम कॉम्पोजिशन आ रही है, यानी कि वेपर में भी 60% ए है एंड 40% बी है। ठीक है, देन हाउ विल यू सेपरेट ए एंड बी, अब ए और बी को कैसे सेपरेट करोगे, क्योंकि जो लिक्विड में कॉम्पोजिशन थी वही वेपर में कॉम्पोजिशन आ गई है। कैन यू सेपरेट ए एंड बी नाउ फॉर दिस कॉम्पोजिशन, फॉर दिस कंडीशन, यू कैन नॉट, नॉट बाय डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन से नहीं कर सकते, कोई और केमिकल मेथड सोचना पड़ेगा हमें, डिस्टिलेशन से तो नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्टिलेशन से हम तब सेपरेट करते हैं जब वेपर में कुछ कुछ और होती है कॉम्पोजिशन और लिक्विड में कुछ और होती है। अब कॉम्पोजिशन तो चेंज ही नहीं हो रही, जो मर्जी करते जाओ, आप करते जाओ डिस्टिलेशन, लेकिन जितना अमाउंट लिक्विड में रहेगा ए का उतना ही वेपर्स में रहेगा। ठीक है, यू हैव टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ए इन वेपर्स ना। ठीक है, व्हाट डू यू हैव टू डू, व्हाट हैव यू एक्सपेक्टेड, यू हैड एक्सपेक्टेड दैट द अमाउंट ऑफ ए इन वेपर्स वुड बी मोर। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वेपर्स में जो ए है वो 80% होता और जो बी है वो 20% होता। ठीक है, एक बार और सेम प्रोसेस कर लेते, फिर हमें ए और ज्यादा मिल जाता, ए और ज्यादा मिल जाता एंड सो ऑन, बट ए का अमाउंट तो सेम आ गया। ठीक है, 60 आ गया और 40 आ गया, बिल्कुल सेम हो गई है तो दोनों। नाउ सो फॉर such a mixture cannot be separated by distillation, इसको distillation से separate नहीं कर सकते आप, such a mixture cannot be separated by distillation। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड सच अ मिक्सचर, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एजियोट्रॉप बच्चे, ये प्रॉपर्टी होती है एजियोट्रॉप की। ठीक है, एजियोट्रॉप ऐसे बिहेव करता है जैसे वो प्योर लिक्विड हो। ठीक है, एजियोट्रॉप कैसे बिहेव करता है, एजियोट्रॉप का जो जो भी कॉम्पोजिशन है वो ऐसे बिहेव करता है जैसे वो प्योर लिक्विड है। ठीक है, मतलब क्या है इसका, मतलब ये है जैसे आपने मान लो H2O लिया। ठीक है, अब H2O की यहाँ पर लिक्विड में कॉम्पोजिशन क्या है, H2O H2O H2O, और वेपर्स में कॉम्पोजिशन क्या होगी, सेम होगी। वेपर में भी जो मॉलिक्यूल है वो H2O रहेगा, जितनी परसेंटेज हाइड्रोजन की यहाँ पे है उतनी परसेंटेज यहाँ पे भी होगी, राइट। ठीक है, सेम इज द बिहेवियर ऑफ दिस मिक्सचर दैट आई टोल्ड यू, जो मिक्सचर मैंने अभी आपको बताया वो भी तो सेम बिहेव कर रहा है, जो लिक्विड में परसेंटेज है ए की वो भी वही वेपर्स में है। ठीक है, सो दिस इज हाउ एक्चुअली एजियोट्रॉप्स आर गोना बिहेव, एजियोट्रॉप की प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, दैट इज दे वेपराइज विद द सेम कॉम्पोजिशन ऑफ द components. That is why an azeotropic mixture, it cannot be separated by fractional distillation because it will not obey the basic principle used for fractional distillation. That is what it is. ठीक है, ओके, अब आ रहे हैं ये, चलिए,
Okay, so people, each one of you, you must be preparing for JEE or NEET. ठीक है, so you have got to take it very very seriously. Doubts clear करना बहुत बहुत जरूरी है. ठीक है, so उसके लिए I'm bringing something for you that is called Pro subscription. बहुत important, बहुत ही amazing सा subscription है. ठीक है, all the live classes will be there. You can master concepts with, of course, India's best teacher. ठीक है, and English और हिंदी में पढ़ने का option है आपके पास. Okay, then और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, माइक्रो कोर्स. माइक्रो कोर्स क्या होता है, चैप्टर वाइज कोर्स. ठीक है, तो चैप्टर वाइज आप पढ़ाई कर सकते हो, एक एक चैप्टर करके आप पढ़ाई कर सकते हो. ठीक है, कोई चैप्टर आपका रह गया, कोई चैप्टर नहीं हुआ, यू कैन गो फॉर दैट चैप्टर. ठीक है, इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ओके पीपल, सो लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. यू जस्ट क्लिक ऑन द, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द लिंक, then click on the your class, then click on the course you want to enroll for, then use this coupon code SAPPRO in order to avail 20% discount. Discount मिल जाएगा 20%, very easy. ठीक है, ओके. एजियोट्रॉप्स क्या है अब, बाइनरी मिक्सचर्स हैविंग द सेम कॉम्पोजिशन. अगर मैं आपको वो सब नहीं बताती पहले तो ये समझ में नहीं आता. ठीक है, तो रटनी पड़ती डेफिनेशन. ठीक है, सो बेसिकली दे आर द मिक्सचर दैट हैव सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड दे बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक है, एंड यू कैन नॉट सेपरेट देम बाय डिस्टिलेशन. ईच एंड एवरी वर्ड इज क्लियर नाउ. ठीक है, सो बाइनरी मिक्सचर्स विच इवेपोरेट विद द सेम कॉम्पोजिशन. जैसे मान लो हमने इथेनॉल और वाटर का कॉम्पोजिशन लिया था. ठीक है, क्या लिया था हमने, इतना ही होता है, ये तो एक्चुअल में इतना ही होता है, 95% इथेनॉल पॉजिटिव डेविएशन वाला एंड 5% वाटर लिया था हमने. ठीक है, नाउ व्हेन इट इवेपोरेट्स ना, अब आप इसको हीट करोगे, इवेपोरेशन होगा. ठीक है, जब इवेपोरेशन होगा बच्चे, तो वेपर्स में सेम कॉम्पोजिशन आ जाएगा, ना इथेनॉल ज्यादा ना इथेनॉल कम. It will be 95% ethanol and 5% water. ठीक है, so this is the property of the azeotrophs, that is they boil with the same composition, they vaporize with the same composition as it was in the liquid phase. बिल्कुल same. ठीक है, there are two types of azeotrophs. I already told you this thing. मिनिमम बॉइलिंग कब होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग मतलब बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम, बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम मतलब वेपर प्रेशर मैक्सिमम. वेपर प्रेशर मैक्सिमम कब होगा, जब पॉजिटिव डेविएशन होगी. सो दीज आर फॉर्म्ड व्हेन द सॉल्यूशन शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन एंड दे आर बेसिकली फॉर्म्ड एट द मैक्सिमम पॉइंट, है ना, जहां पर डेविएशन मैक्सिमम थी. Similarly, maximum boiling azeotrophs, they are formed when the solutions show large negative deviation. Negative deviation के केस में, ठीक है, जहां पर मिनिमा आ रहा था ना वेपर प्रेशर में, जहां पे मिनिमा आ रहा था, that point was called azeotrophs. ठीक है, ओके. सो दिस वाज विद द azeotrope people. ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार. फॉर एग्जाम्पल, सॉल्यूशन विच शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, they form minimum boiling azeotrope at a specific composition. कौन सी composition थी वो, अभी हमने कर भी लिया ये, अब तो ये भी याद रहेगा आपको. 95% ethanol and 5% क्या है, water. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस मिक्सचर. ठीक है, देन मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होंगे, जो लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे. सिंपल. ठीक है, एग्जाम्पल देखो वही लिया है हमने, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर का एग्जाम्पल लिया है. गॉट दिस थिंग. ठीक है, इजी था, अच्छा था. ओके, नाउ अब क्या हो रहा है देखो. नाउ चलो इनको नाम देते हैं, इनको नाम देते हैं. सपोज दिस इज सम फ्रेंड, दीज बोथ आर फ्रेंड्स, ये दोनों क्या है, फ्रेंड्स हैं. ठीक है, मान लेते हैं कि इसका जो नाम है, इसका नाम है हरीश. हरीश है इसका नाम. ठीक है, क्योंकि हरीश ही आया मेरे दिमाग में. और ये है फ्रेंड ऑफ दिस हरीश एंड हिज नेम इज सीमा. ठीक है, सो नॉट द यूनिक नेम्स, ऐसे ही नाम मेरे दिमाग में आ गए, हरीश एंड सीमा, दे आर फ्रेंड्स. सो हरीश क्या बोल रहा है, हरीश बोल रहा है, डू यू नो व्हाट आर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, पता भी है तुम्हें कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. सीमा विल से यस आई नो दैट. मेरे को इतना बेवकूफ मत समझो. ठीक है, जितनी मैं दिखती हूँ उतनी मैं बेवकूफ हूँ नहीं. ठीक है, सो सीमा विल से दिस थिंग ऑफ कोर्स. ओके, so the Seema replies that the properties of the solution related to the number of solute particles in the solution, जो solute particles पे डिपेंड करती हैं वो होती है colligative property. सिंपल. ठीक है, एक colligative property करेंगे आज हम.
ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स नॉट ऑन देयर नेचर। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नेचर पे नहीं। ठीक है, ओके, प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। ठीक है, दोज आर कॉल्ड द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है बच्चे, सीपी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स की जगह पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स भी कर सकते हो, एक ही बात है। एंड नॉट ऑन देयर नेचर। ठीक है, टोटल पार्टिकल में से सॉल्यूट पार्टिकल कितने हैं इस पे डिपेंड करती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, गॉट इट? कितने टाइप के हैं देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? 4 हैं, ये तो आपको पता ही है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। आज हमें बस एक करनी है, दैट इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, क्या होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? क्या होता है? वी हैव ऑलरेडी डन दिस बच्चे, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, जब आप एक प्योर सॉल्वेंट में क्या ऐड करोगे? नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट। ठीक है, रिमेम्बर बहुरानी आ जाती है और वो ज्यादा बाहर जाने नहीं देती है ना, फैमिली को जाने नहीं देगी, अपने पति को जाने नहीं देगी, है ना, तो वेपराइजिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। ठीक है, मान लो प्योर सॉल्वेंट में जो वेपर प्रेशर है वो है पी नॉट, और सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का, ऑफ कोर्स, वो है पी, क्योंकि सॉल्यूट तो आपका नॉन वॉलेटाइल है। तो जितना भी प्रेशर है सॉल्यूशन का, ये तो मैंने पहले भी बताया था बच्चे, इट विल बी इक्वल्स टू द प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, लेकिन सॉल्वेंट तो वॉलेटाइल है, तो आप सॉल्वेंट पे क्या लगा सकते हो? रॉल्ड्स लॉ। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट। ठीक है, अब इसको जो प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है या जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, इसको हमने लिख दिया पी, सिर्फ पी लिख दिया इसको। ठीक है, तो और इसको हमने लिख दिया है पी नॉट, इसको पी नॉट लिख देते हैं सिर्फ। ठीक है, सो पी विल बी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू पी नॉट। पी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को ना आप 1 लिख लेते हैं बच्चे। 1 का मतलब है सॉल्वेंट, और 2 से किसको डिनोट किया हमने? सॉल्यूट को। 2 का मतलब है सॉल्यूट। ठीक है, सो P विल बी इक्वल्स टू x1 इंटू पी नॉट, x1 इंटू पी नॉट। ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज। ठीक है, ये कर लिया हमने, ये प्रेशर हो गया। अब लोअरिंग क्या होगी बच्चे? ये देखो यहीं से शुरू किया जा रहा है फिर से। लोअरिंग क्या होगी? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालते हैं। जो वेपर प्रेशर है वो कितना है? P इज इक्वल्स टू x1 इंटू पी नॉट। ठीक है, लोअरिंग का क्या मतलब है? लोअरिंग का मतलब क्या है? डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ड्यू टू एडिशन ऑफ द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। पहले वेपर प्रेशर कितना था? पी नॉट, अब कितना हो गया है? पी, एंड वी नो दैट दिस पी इज लेसर देन पी नॉट। डिक्रीज होगा वेपर प्रेशर, ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको, पहले किया हमने पिछली क्लासेस में। अगर आपको क्लियर नहीं है, यू कैन अगेन वॉच दैट वीडियो। ठीक है, सो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा? इट विल बी पी नॉट माइनस पी, राइट, सिंपल। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा? पी की वैल्यू पुट कर दो, इट विल बी पी नॉट माइनस पी नॉट इंटू x1। ठीक है, सो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, LVP, आई एम राइटिंग इट LVP, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इट इज इक्वल्स टू P नॉट माइनस P, विच इज इक्वल्स टू P नॉट इंटू 1 माइनस x1। 1 माइनस x1 क्या होगा बच्चे? x1 क्या है? x1 इज नथिंग, x1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, है ना। 1 जो है वो हमारा सॉल्वेंट था ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, राइट। ठीक है, सो 1 माइनस x1 क्या होगा? 1 माइनस x1 विल बी नथिंग, इट विल बी इक्वल्स टू x2। बाइनरी मिक्सचर है, 1 और 2 दोनों ही है, सो x1 और x2 क्या होगा? 1, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज 1। ठीक है, सो x2 क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दिस विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ नथिंग बट सॉल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज नॉट, मतलब ये कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा? पी नॉट माइनस पी इज इक्वल्स टू पी नॉट इंटू x2, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नाउ पीपल, इस पी नॉट को अगर मैं नीचे ले आऊं तो ये क्या बन जाएगा? पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, विच इज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिख दो यहाँ पे चाहे। ठीक है, इसको क्या बोले बच्चे? The numerator is the decrease in vapor pressure and you are dividing it by the original
high vapor pressure in the pure state. ठीक है, so this term is called relative lowering in vapor pressure. Why relative? Because now it is taken with respect to the original pressure, है ना, रेशियो ले लिया अब हमने. So this will be called relative lowering in vapor pressure. ठीक है, technically it is this and it is equal to the mole fraction of the solute. ठीक है, simple thing. Okay. ओके, सो रिलेटिव लॉवरिंग. ओके, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर किसके इक्वल है? RLVP लिख देते हैं इसको. रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर इट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट. ठीक है, अब इसको बच्चे हम क्या लिख सकते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को आप क्या लिख सकते हो? इट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N2, 2 से रिप्रेजेंट किया था, अपॉन N1 प्लस N2. ठीक है, नाउ इफ योर सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, which is generally the case for dilute solution. Dilute solution का मतलब क्या है? Number of moles of solute will be much lesser than the number of moles of solvent. In such a case, people, N1 plus N2 को मैं क्या लिख सकती हूँ? सिर्फ N1, क्योंकि N2 तो बहुत कम हो गया N1 के कंपैरिजन में, तो इसको N1 लिख सकते हो आप. ठीक है, तो RLVP जो है वो क्या होगा? N2 अपॉन N1, सिंपल. ठीक है, अब N2 को क्या लिख सकते हैं? गिवन मास अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, और N1 को क्या लिख सकते हो? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, बिकॉज दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास. सो दिस थिंग विल बी W2 अपॉन M1, राइट? ठीक है, सॉरी M1 ऊपर चला जाएगा, आई एम सो सॉरी. W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1. ठीक है, W2 एंड W1 क्या है? W2 है गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट, सॉरी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट. आई राइट इट हियर. W2 है मास ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, और W1 क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट. मास ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, so if masses are given then you can use this thing and you can calculate the relative lowering in vapor pressure. ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट. I know you people will do it now. Vapor pressure of pure water is given 23.8 mmHg. What is this, people? It is P naught, which is 23.8 mmHg. Now you have added 50 gram of urea to 850 gram of water. बहुत ज्यादा है water तो. Calculate the vapor pressure of water for this solution and its relative lowering. पहले तो vapor pressure निकालना है water का इस solution के लिए. ठीक है, तो आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे बच्चे. N1 क्या है? 1 का मतलब सॉल्वेंट. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आर 850 अपॉन 18. पीपल यू कैन सॉल्व इट ना, इसको सॉल्व कर लेना. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ? 50 अपॉन 60. इसका मॉलिक्यूलर मास 60 होता है. ठीक है, सो दिस विल बी 50 ग्राम अपॉन 60 ग्राम. दिस विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट. ठीक है, नाउ पहली बात, जो प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा? प्रेशर किसके इक्वल होगा? प्रेशर विल बी सिंपली इक्वल टू प्रेशर ऑफ वाटर निकालना है हमें. सो इट कैन सिंपली बी कैलकुलेटेड. इट विल बी इक्वल्स टू P नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, राइट? रॉल्स लॉ लगा दिया. ठीक है, सो इट विल बी 23.8 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर विच इज 850 अपॉन 18 डिवाइडेड बाय 850 अपॉन 18 प्लस 50 अपॉन 60. आई थिंक दिस कैन बी निग्लेक्टेड. अब आप इसको सॉल्व करोगे ना बच्चे, दिस थिंग कुड बी निग्लेक्टेड. ठीक है, तो यहां से आपके पास P आ जाएगा. एक पार्ट हो गया. अब निकालनी है रिलेटिव लोअरिंग. रिलेटिव लोअरिंग क्या होती है? रिलेटिव लोअरिंग होती तो ये है P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट. तो चाहे इसको पूरा सॉल्व कर लो या फिर सीधा इसको कर दो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है वही तो रिलेटिव लोअरिंग है. ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल लो, विच विल बी 50 अपॉन 60 अपॉन 50 अपॉन 60 प्लस 850 अपॉन 18. ठीक है, so you can just solve it and you will be getting the mole fraction of solute and corresponding relative lowering in vapor pressure. ठीक है, simple, very simple. Okay, simple सा question था. This is the answer, people. You can just calculate it. You will be getting the answer. Okay. अच्छा, सिर्फ 0.4 का डिक्रीज आया है, ज्यादा डिक्रीज नहीं आया क्योंकि आपने बहुत कम ऐड किया ना. ठीक है, so people, that's all we had to do for today. So about that pro subscription, link is given in the description. ठीक है, and trust me, that's an amazing subscription. Click on the link and then choose your class, choose your course and use this coupon code SAPRO. ठीक है, इसको जरूर यूज करना है so that you can have 20% discount. ठीक है, ओके, लेट्स समराइज. फटाफट समराइज कर लेंगे.
तो हमने आज वैसे बेसिकली एजियोट्रॉप किया है। एजियोट्रॉप दो टाइप के होते हैं, कौन से? एक तो होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग मतलब बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम, सिंपल। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम कब होगा? बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम तब होगा जब वेपर प्रेशर क्या होगा? मिनिमम। वेपर प्रेशर मिनिमम कब होगा? when the solution will be showing a negative deviation, large negative deviation, right? ठीक है, जो हमने HNO3 और वाटर वाला नहीं किया था, ठीक है। सो दूसरे एजियोट्रॉप कौन से हैं? मिनिमम बॉइलिंग मतलब बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम मतलब वेपर प्रेशर मैक्सिमम। इसको ऐसे सोचना है बच्चे, वरना गलती कर दोगे। वेपर प्रेशर मैक्सिमम कब होगा? जब पॉजिटिव डेविएशन होगी, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। सिंपल एंड सिंपल, ठीक है। देन वी डिड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर which is given by P naught minus P upon P naught, and it can be directly calculated since it is equals to mole fraction of solute. बहुत ही आसान है ना, ठीक है। ओके, सो पीपल सॉल्यूशन चैप्टर ये ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है। इस पे सिर्फ 2 क्लासेस और लगेंगे, मैक्सिमम 3। देन विल बी डूइंग द मेगा मेंटी एंड देन आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू पीपल, ठीक है। आई हैव थॉट समथिंग फॉर यू पीपल, ठीक है। डिस्कस करेंगे, फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है, ठीक है। सो सबसे पहले ये होमवर्क है, होमवर्क कर लेना। रिवाइज द सेशन। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, and when you are done with the homework leave the thumbs up in the comment section so that I get to know that you have done the homework, ठीक है। एग्जाम्पलर भी कर लेना और क्वेश्चन यहाँ तक कर लेना 2.20 तक, ठीक है। ओके, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। इसको रीड करो एंड लीव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी वेटिंग फॉर दैट, ठीक है। सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड वेटिंग फॉर योर आंसर, ठीक है। So I hope this session was helpful for you. You got to know a lot about the azeotrope, how do they behave, and actually what is the definition says. ठीक है? Okay. If you enjoyed it, people, please hit the like button. It means a lot to me. ठीक है? Again, the pro subscription I told you, link is given in the description. Use the coupon code SAPRO and avail the 20% discount. ठीक है? That's all for today, people. Okay, the स्केड्यूल क्लास 11 के लिए मेरा स्केड्यूल रहता है मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, ऑल्टरनेट डेज बेसिकली एट 2 PM, ठीक है। सो डू नॉट मिस एनी सेशन, आई कीप सेइंग दिस, क्योंकि ओनली देन यू विल बी हैविंग 90 और 95% इन योर फाइनल एग्जाम्स, ठीक है। तो कोई भी सेशन मिस मत करो, वरना आगे समझ में नहीं आता, ओके। फॉर दैट यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो इस लिंक से एंड दोज हु हैवंट सब्सक्राइब्ड please hit the subscribe button and the bell icon, ठीक है, so that you do not miss any notification about the amazing sessions that will be happening, है ना, सरप्राइज वगैरह एंड ऑल, ठीक है। चलो पीपल, I will see you live in the next class. Bye bye, till then take care, have a good day, ठीक है। Please complete your homework and let me know in the comment section. Bye bye, take care.